أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی۔ نورانی قاعدہ کی آخری تختی آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور امید ہے آپ نے جو چیزیں بھی سیکھی ہیں وہ اچھی طرح آگی ہوں گی اور ان کی مشق بھی آپ نے کر لی ہوگی۔ کسی قسم کا کوئی پرابلم ہو تو اس کے لیے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ واٹس ایپ کا نمبر اور ای میل ایڈریس بھی دے دیا گیا ہے، نہیں تو اباؤٹ سیکشن میں جا کر آپ ہمارا ای میل ایڈریس لے سکتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس تختی کے اندر کیا چیزیں ہیں۔ یہاں پر دیکھیے الدرس الاخیر مطلب آخری سبق، تدریبات علی ما سبق، پیچھے جو کچھ گزر چکا ہے اس پورے کی مشق۔ جیم زبر جا، زا الف مد زبر زا، یہ مد واجب ہے، اور حروف مدہ کے بعد اسی کلمہ میں حمزہ آ جائے تو وہاں پر مد ہوتا ہے، اور اس مد یہ مد جو ہے اس کی مقدار بھی زیادہ ہے، اور مد واجب اس کو کہتے ہیں۔ زا الف مد زبر زا، جزا، حمزہ دو زبر ان، جزاءن، اور یہاں پر الف لام ہے اور یہاں پر تنوین ہے، اور تنوین کے بعد اگر کوئی ساکن دوسرے کلمہ کے اندر آ جائے تو پہلے تو یہ چیز جو ہم نے پچھلی تختی میں سیکھی ہے کہ ساکن حرف کے آگے اگر ایک اور ساکن دوسرے کلمہ کے اندر ہو تو اس کو زیر دے کے ملاتے ہیں، اور یہاں پر کیونکہ تنوین ہے وہ عام سکون نہیں ہے، اس لیے ایک حرکت مطلب دو زبریں ہیں تو ان میں سے ایک زبر کے بدلے میں نون لگائیں گے یہاں پر، اس نون کو نون قطنی کہتے ہیں، اور ایک زبر باقی رہے گا جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر دو زبریں تھیں، اور اگر دو زیریں ہوتی تو ایک زیر باقی رہنی تھی، ایک کے بدلے میں ہم نے نون لگانا تھا۔ اگر اسی طرح دو پیشیں ہوں تو اس میں سے ایک پیش کے بدلے میں نون قطنی لگاتے ہیں اور ایک پیش باقی رہتا ہے۔ تو ہم کہیں گے حمزہ زبر آ، جزاء، یہاں جو ایک حرکت ہے اس کو یہاں نون بنائیں گے تو اس کو ہم پڑھیں گے نون لام سے نل، جزاءنل، میم زبر ما، جزاءنل ما۔ یہ تو الملائکہ ہم آگے پورا پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر یہاں پر وقف کریں گے دو زبر پر وقف کرتے وقت ایک زبر اور الف پڑھتے ہیں تو ہم پڑھیں گے جزاءن، آگے وقف جزاء، وقف کی صورت میں نون قطنی نہیں پڑھا جاتا۔ حمزہ لام زبر ال، میم زبر ما، الما، لام ماد کھڑا زبر لا، الملا، حمزہ سے ای، الملائی، کاف زبر کا، الملائکہ، تاپشتو، الملائکاتو، گول تا پر وقف کرتے وقت ہم اس کو ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں۔ الملائکاتو، آگے وقف الملائکہ، حمزہ نون سے ان، نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ نون الف ماد زبر نا، اننا، یہاں پر آپ کو ماد نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں پر دیکھیے ایک کلمہ انا ہے اور دوسرا کلمہ اعطینا ہے، تو اس لیے یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں آ گیا ہے، تو یہاں پر جو مد ہوگا وہ مد واجب نہیں ہے بلکہ مد جائز ہے، اس لیے یہاں پر مد کرنا بھی ٹھیک ہے، نہ کرنا بھی ٹھیک ہے۔ تو ہم انا، حمزہ عین زبر آ، انا آ، مد نہ کریں یا پھر مد کر لیں، یا کم کر لیں یا زیادہ کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انا آ، طا یا زبر طی، انا
आतोई, नून खड़ा ज़बर ना, इन्ना आतोइना, काफ ज़बर का, इन्ना आतोइना का, आगे वक्फ, इन्ना आतोइनाक। हमजा से ई, लाम या ज़बर लई, इलई, नून अलिफ मद ज़बर ना, इलैना। आगे हमजा है, उसकी वजह से यहाँ पर मद हो रहा है, वो दूसरे कलमा में यहाँ मद जायज़ है। और अगर हम यहाँ पर वक्फ करेंगे, जब मद वाले कलमा के ऊपर हम वक्फ करते हैं तो वहाँ पर मद नहीं होता, तो हम इसको यूँ पढ़ सकते हैं, इलैना, आगे वक्फ, इलैना, यहाँ मद नहीं करेंगे, हरूफ मद्दा ही सिर्फ पढ़ा जाएगा। बाकी हम अगले सफ़ा पर देखते हैं। पीछे था इलैना, तो अगर हम इन दोनों को इकट्ठा पढ़ें, वैसे तो इकट्ठे ही हैं कुरान मजीद के अंदर, इलैना हमजा से ई, या अलिफ ज़बर या, इया, बा ज़बर बा, हा मीम पेश हुम, इयाबाहुम, इलैना इयाबाहुम। अगर हम वहाँ पर वक्फ नहीं करेंगे तो फिर मद भी पढ़ा जाएगा, तो इलैना इयाबाहुम, आगे वक्फ, इलैना इयाबाहुम। आखिरी हर्फ साकिन है, इसलिए वक्फ करें या ना करें, दोनों सूरतों में एक ही तरह से पढ़ा जाएगा, मतलब कोई तब्दीली नहीं आएगी। यहाँ पर आपको एक दायरा नज़र आ रहा होगा, ये दायरा असल में आयत की निशानी है, ये दायरा आयत की निशानी है, तो इसको कहा जाता है कि ये गोल ता की अलामत है, यानी आया, आयतुन, तुन का जो ता है वो यहाँ पर लिखा गया है, तो आयत की अलामत है ये दायरा। कुरान मजीद में ये दायरा आपको जगह जगह नज़र आएगा, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है, यानी कि जहाँ पर ये दायरा आ जाए तो इसका मतलब है वो आयत मुकम्मल हो चुकी, ये आयत के आखिर में लगाया जाता है। खा या ज़बर खाई, रा या दो ज़बर राई, यहाँ पर इदगाम की मिसाल है, इदगाम नाक़िस की, यहाँ पर नून की आवाज़ भी आएगी और हम गुन्ना भी करेंगे, तो नून तनवीन से आगे अगर हरूफ यरमलून या हरूफ इदगाम में से कोई हर्फ आ जाए तो फिर वहाँ पर इदगाम करते हैं, मतलब एक हर्फ को दूसरे से मिला देते हैं, और फिर मिलाने के दो तरीके हैं, इदगाम कामिल और इदगाम नाक़िस। इदगाम कामिल का मतलब है कि जिसमें नून नहीं पढ़ा जाता, और इदगाम नाक़िस का मतलब है कि जिसमें नून पढ़ा भी जाता है और वहाँ गुन्ना भी करते हैं। तो हम रा या दो ज़बर रई, खैरई, या ज़बर या, खैरई या, रा ज़बर रा, खैरई यारा, हा उल्टा पेश हु, खैरई याराहु। हमने पिछले सफ़ा पर पढ़ा है कि अगर हरूफ मद्दा या हरकात मद्दा पर वक्फ करें तो कोई तब्दीली नहीं आती, लेकिन अगर ये हा जो है, ये हा, इसके ऊपर अगर हरकत मद्दा हो तो वक्फ करते वक्त उसको साकिन कर देते हैं, तो हम यहाँ पर वक्फ करते वक्त पढ़ेंगे खैरन यराहु, आगे वक्फ खैरन यराह, शीन रा ज़बर शर, रा या दो ज़बर रई, शर्रन, या ज़बर या, शर्रन या, रा ज़बर रा, शर्रन यरा, हा उल्टा पेश हु, शर्रन यराहु, आगे वक्फ शर्रन यरा। मीम या से मी, काफ खड़ा ज़बर का, मी का, ता या दो ज़बर तई, मी का तई, या वाव ज़बर यौ, मी का तई यौ, मीम ज़बर मा, मी का तई यौमा, आगे वक्फ मी का तई यौम। फा ज़बर फा, मीम नून या ज़बर मई, यहाँ पर देखिए नून तनवीन की मिसालें हैं और यहाँ पर नून साकिन की मिसाल आ गई है, मतलब जिस्म वाले नून की, तो मीम नून या ज़बर मई, ये नून पढ़ा जाएगा, वह ये हिज्जे में भी और रवा में भी। मीम नून या ज़बर मई, फमई, या आइन ज़बर या, फमई या, मीम लाम ज़बर मल, फमई यामल, आगे वक्फ फमई यामल। आखिरी हर्फ साकिन हो तो फिर वक्फ करते वक्त कोई तब्दीली नहीं आती।
या वाव ज़बर यऊ, मीम ज़बर मा, यौमा, हमज़ा ज़ेर ई, यौमई, दाल या दो ज़ेर दी, यौमइज़ी, या स्वाद ज़बर यस, यौमइज़ी यस, दाल पेश दो, रा नून पेश रुन, यस्दुरुन। यहाँ पर देखिए अलिफ लाम है नून से पहले, लेकिन ना अलिफ पढ़ा जा रहा है ना नून, ना ही लाम पढ़ा जा रहा है। तो उसकी वजह यह है कि जो अलिफ है ये हमज़ा वस्ली की मिसाल है, और जो लाम है उससे आगे हरूफ शमसी में से नून है, इसलिए इस लाम को नहीं पढ़ा जाएगा। और अलिफ क्योंकि दरमियान में आने की वजह से नहीं पढ़ा जा रहा, यानी हमज़ा वस्ली होने की वजह से, हमज़ा वस्ली दरमियाने कलाम में आने की वजह से पढ़ा नहीं जाता। तो हम ना अलिफ को पढ़ेंगे ना लाम को पढ़ेंगे। रा नून पेश रुन, यौमइज़िन यस्दुरुन, और नून मुशद्दद है यहाँ इसलिए गुन्ना करेंगे। नून अलिफ ज़बर ना, सीन पेश सु, यौमइज़िन यस्दुरुन नासु, आगे वक्फ, यौमइज़िन यस्दुरुन नास। यहाँ पर इदगाम कामिल की मिसाल है, इसलिए नून को नहीं पढ़ा जाएगा। तो हम मीम नून राज़ मिर कहने की बजाय हम कहेंगे मीम राज़ मिर, रा बाज़ बर रब, नून नहीं पढ़ा जाएगा। लाम और रा के अंदर इदगाम कामिल होता है, और या मीम वाव नून के अंदर इदगाम नाकिस होता है। तो इस चीज़ को आपने इसी तरह ही पढ़ना है। मीम राज़ मिर, रा बाज़ बर रब, मिर रब बाज़ बी, मिर रब्बी, काफ ज़बर का, मिर रब्बिका, आगे वक्फ, मिर रब्बिक, रा ज़बर रा, सीन वाव पेश सू, रसू। यहाँ पर इदगाम नाकिस की मिसाल है। हम तनवीन को मीम से मिलाएंगे, और हरूफ यमून में से ये हर्फ है, लाम और रा में से नहीं है। हरूफ यमलून के 4 जो हरूफ हैं उनमें से ये मीम आ गया है, इसलिए यहाँ पर इदगाम नाकिस होगा। और नून तनवीन को इस मीम से इस तरह मिलाएंगे कि इसके अंदर गुन्ना किया जाए। लाम मीम दो पेश लुम, इस मिलाने की वजह से यहाँ तशदीद हुई है, इसलिए इस मीम के अंदर भी गुन्ना करना होगा। रसूल मीम ज़ेर मी, नून लाम ज़बर नल, मिनल। यहाँ पर देखिए ये नून असल में साकिन था, मिन असल में हर्फ है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि वैसे तो हम दो साकिन इकट्ठे आ जाए तो वहाँ पर पहले वाले सुकून को अगले से मिलाने के लिए ज़ेर देकर मिलाकर पढ़ते हैं, लेकिन मिन इसके खिलाफ है, मतलब इसको हम शाज़ कहते हैं। कहीं कहीं जो भी कानून होता है दुनिया को कहीं कहीं नहीं लगता, तो इस मिन को यहाँ पर इस्तिस्ना हासिल है। तो हम नून को आगे मिलाने के लिए ज़बर देंगे, मिनी मिनी नहीं पढ़ेंगे, मीना पढ़ेंगे। तो हम इसको मिलाते हुए नून लाम ज़बर नल पढ़ देंगे, नून लाम ज़बर नल, मिनल, लाम खड़ा ज़बर ला, मिनल्लाह। यहाँ पर एक फायदा है, लाम हमेशा बारीक होता है, लाम पढ़ने में बारीक होता है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। लेकिन अल्लाह से पहले, अल्लाह का जो लाम है, अल्लाह से पहले अगर ज़बर या पेश हो तो उसको मोटा पढ़ते हैं, और अगर उससे पहले ज़ेर हो तो उसको बारीक पढ़ते हैं। लाम हमेशा पढ़ने में बारीक होता है, लेकिन सिर्फ जहाँ पर अल्लाह लिखा हो उससे पहले ज़बर या पेश आ जाए तो उस लाम को मोटा पढ़ते हैं। तो इसलिए जहाँ पर अल्लाह आ जाए या अल्लाहुम्मा आ जाए, दोनों सूरतों में क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का नाम है, इसलिए वहाँ पर हम लाम को मोटा ही पढ़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम पढ़ते वक्त नून लाम ज़बर नल, लाम खड़ा ज़बर ला, मिनल्लाह। तो रसूलुम मिनल्लाह, हाजिर ही, रसूलुम मिनल्लाही, आगे वक्फ, रसूलुम मिनल्लाह, इस तरह वक्फ कर लेंगे।
اور مد جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہاں پر حرکت مدہ سے آگے وقف کی وجہ سے ہا کے اوپر سکون آ جائے گا، مطلب یہ ہا ساکن ہو جائے گا، تو اس صورت میں ہمیں یہاں پر مد کرنا ہوگا، اور یہ مد جائز ہے، اگر کریں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے، کم مقدار میں کریں یا زیادہ مقدار میں کریں، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ صاد پیش سو، ہا پیش ہو، سوحو، فا میم دو زبر فم، یہ جو نون تنوین ہے اس سے آگے پھر یہ میم آ گیا ہے، تو یہ ادغام ناقص کی مثال ہے۔ صحفا میم پیش مو، طا ہا زبر طا، صحفا طا ہا زبر ہا، صحفا مطہا را زبر را، صحفا مطہرا تا دو زبر تن، یہاں پر اخفاء کی مثال ہے، یہاں پر غنہ ہوگا۔ صحفا مطہرتا، آگے وقت صحفا مطہرا، صاد فا زبر صف، فا لام دو زبر فل، یہاں ادغام کامل کی مثال ہے، یہاں پر ادغام ہوگا اور اس وقت نون کو نہیں پڑھا جائے گا۔ صفل لام الف زبر لا، صفل لا یا زبر یا تا زبر تا، صفل لا یا تا، کاف لام زبر کل، لام زبر لا، صفل لا یا تکلا، میم واو پیش مو، نون زبر نا، صفل لا یتکلمون، آگے وقت صفل لا یتکلمون، قاف پیش قو، لام واو پیش لو، قلو، با یا دو پیش بوئی، ادغام ناقص، قلوبوئی، یا واو زبر یو، میم زبر ما، قلوبوئی یوما، حمزہ زیر ای، قلوبوئی یوما ای، ذال واو دو زیر ذیون، قلوبوئی یوما اذیون، واو الف زبر وا، جیم زیر جی، قلوبوئی یوما اذیون واجی، فا زبر فا، قلوبوئی یوما اذیون واجفا، تا دو پشتن، یہاں پر اظہار ہے، یعنی نون تنوین سے آگے حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، اس لیے یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ واجفتن، تا دو پیش تن، قلوب یومئذ واجفتن، حمزہ با زبر اب، صاد کھڑا زبر صا، قلوب یومئذ واجفتن ابصا، را پیش رو، ہا الف زبر ہا، قلوب یومئذ واجفتن ابصارها، اور یہاں پر وقف کرتے وقت کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ آخر میں حرف مدہ ہے الف، تو حروف مدہ یا حرکات مدہ پر وقف کرتے وقت کوئی تبدیلی نہیں آتی، یا اس میں سے صرف یہ والا ہا جو ہے وہ شامل نہیں ہے، اس پر وقف کرتے وقت اس کو ساکن ہی کریں گے، تو ہم کہیں گے قلوب یومئذ واجفۃ ابصارها، یہ وقف ہو گیا۔ سین زیر سی، را الف زبر را، سرا، جیم واو دو زبر جاؤں، سراجاً، واو ہا زبر وہ، ہا الف زبر ہا، سراجاً وہا، جیم دو زبر جن، سراجاً وہاجاً، اگر ہم یہاں پر ملا کر پڑھیں گے، ویسے تو آیت کی علامت ہے، لیکن اگر یہ نہ ہو یا ہو تو بھی اگر آپ آگے ملانا چاہیں تو ملا سکتے ہیں۔ اس کو ملاتے وقت ہم یہاں پر پھر ادغام ناقص ہوگا، نون تنوین سے آگے واو ہے، اور اس کو ملا دیں گے تو یہاں پر غنہ بھی ہوگا اور نون کی آواز بھی آئے گی۔ جیم واو دو زبر جاؤں، اس طرح ہم ملائیں گے، سراجاً وہاجاً، تو یہاں اگر وقف کریں گے تو پھر ہم دو زبر پر وقف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک زبر اور الف پڑھا جاتا ہے، سراجاً وہاجا، واو زبر وا، حمزہ نون زبر ان، یہاں پر اخفاء کی مثال ہے، زال لام زبر زل، وانزل، نون الف زبر نا، وانزلنا، لیکن دیکھیے حروف مدہ کے بعد دوسرے کلمہ کے اندر حمزہ ہے، اس لیے ہم یہاں پر مد کر سکتے ہیں، وہ مد جائز ہے، مد جائز ہے، تو یہاں پر ہم پڑھ سکتے ہیں نون الف مد زبر نا، وانزلنا، لیکن یہ مد جائز ہے، اس کی مقدار کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور مد نہ بھی کرنا ٹھیک ہے۔ آگے وقف، وانزلنا، یہاں پر وقف کرتے وقت مد پھر نہیں ہوگا، کہ اگر
जहाँ पर मद हो रहा हो वहाँ पर हम वक्फ करें तो वो मद नहीं होता। हमजा काफ ज़बर अक, लाम लाम दो ज़बर लल, ये इदगाम कामिल की मिसाल है। अकलल, लाम मीम ज़बर लम, अकलल लम, मीम वाव दो ज़बर मौ, यहाँ पर इदगाम नाक़िस फिर हो जाएगा। अकलल लम मौ, वाव ज़बर वा, अकलल लम मौवा। अगर हम यहाँ वक्फ कर लेंगे तो दो ज़बर पर वक्फ करने का तरीका यहाँ पर लगेगा। हम कहेंगे आगे वक्फ अकलल लम्मा, वाव ज़बर वा, तापिश्तु, वातु हा बाज़र हिब, वातुहिब, बा वापिशबु, वातुहिब्बु, नून लाम ज़बर नल, वातुहिब्बूनल, मीम अलिफ ज़बर मा, वातुहिब्बूनल मा, लाम ज़बर ला, वातुहिब्बूनल माला, हा बापिश हुब, बा दो ज़बर बन, यहाँ पर इख्फा होगा। वतुहिब्बूनल माला हुब्बन, जीम मीम ज़बर जम, मीम दो ज़बर मन, वतुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मन। आगे वक्फ वतुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा, वहीं पे शुरू ता अलिमत ज़बर ता, एक ही कलमा में मद्दा है और उसी कलमा में हमजा है, इसलिए यहाँ पर मद्द वाजिब होगा। हमजा दो ज़बर अन, वसाअन, हमजा हा ज़बर अह, वाव खड़ा ज़बर वा, वसाअन अहवा। आगे वक्फ वसाअन अहवा, मीम आइन पेश मुअ, ता ज़बर ता, मुअता, दाल दो ज़द्दीन, मुअतदिन, हमजा ज़बर आ, मुअतदिन आ, ता याज़िफ़ी, मुअतदिन असी, मीम दो ज़ेर मिन, मुअतदिन असीमिन, हमजा ज़ेर ई, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, इज़ा, ता ता पेश तुत, मुअतदिन असीमिन इज़ा तुत, लाम खड़ा ज़बर ला, मुअतदिन असीमिन इज़ा तुतला। आगे वक्फ मुअतदिन असीमिन इज़ा तुतला। एक ये और ये जो है इनको इकट्ठे ना भी पढ़े फिर भी ठीक है, क्योंकि ये और जगह का है और ये और जगह का है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी वक्फ कर सकते हैं। मुअतदिन असीमिन, आगे वक्फ मुअतदिन असीम, और फिर इज़ा तुतला, आगे वक्फ इज़ा तुतला। और हरकत मद्दा की वजह से यहाँ पर वक्फ की सूरत में कोई तब्दीली नहीं आएगी। नून अलिफ ज़बर ना, रा दो ज़बर रन, नारन, हा अलिफ ज़बर हा, नारन हा, मीम ज़ेर मी, नारन हामी, या ज़बर या, नारन हामिया, ता दो ज़बर तन, यहाँ इख्फा की मिसाल है। नारन हामियतन, आगे वक्फ नारन हामिया, गोल ता पर वक्फ करते वक्त उसको हा साकिन से बदल देते हैं। ता सीन पेश तुस, काफ खड़ा ज़बर का, तुस्का, मीम नून ज़ेर मीम, तुस्का मिन, आइन या ज़बर आई, तुस्का मिन आई, नून दो ज़ेर नीन, तुस्का मिन आइनिन, हमजा अलिफ ज़बर आ, नून ज़ेर नी, तुस्का मिन आइनिन आनी, या ज़बर या, तुस्का मिन आइनिन आनिया, ता मीम दो ज़ेर तिम, यहाँ मिलाना चाहे तो, अगर ना मिलाएं तो यहाँ पर आयत की निशानी है, तो यहाँ हम रुक जाएंगे। तुस्का मिन आइनिन आनियतिन, आगे वक्फ तुस्का मिन आइनिन आनिया। मीम मीम ज़बर मम, ये हर्फ इक़लाब है, और नून साकिन या नून तनवीन से आगे अगर हर्फ इक़लाब मतलब बा आ जाए तो उस नून को मीम से बदलकर वन्ना करके पढ़ते हैं। तो यहाँ हम मीम मीम ज़बर मम पढ़ेंगे, बाज़ लोग इसको मीम नून मीम ज़बर मम पढ़ते हैं, वो नहीं सही है। तो नून क्योंकि मीम से बदल चुका है, इसलिए हम सिर्फ मीम को ही पढ़ेंगे। मीम मीम ज़बर मम, नून यहाँ पर मीम यहाँ पर लिखा नहीं गया होता, इसलिए हम यहाँ पर मन भी पढ़ सकते हैं, और मीम मीम ज़बर मम भी पढ़ सकते हैं। बाज़ बा खाज़िर खी, मम बाखी, लाम ज़बर ला, मम बाखीला, आगे वक्फ मम बखिल, लाम ज़बर ला, या मीम पेश युम, बा ज़बर बा, ला युम बा, ज़ाल नून ज़बर ज़न, ला युम बदन, नून मुशद्दद पर हमेशा वन्ना होता है, तो यहाँ वक्फ करेंगे तब भी वन्ना करेंगे। नून ज़बर ना, ला युम बदन्ना, आगे वक्फ ला युम बदन। मीम मीम ज़ेर मीम, बा आइन ज़बर बा, मीम बा, दाल ज़ेर दी, मीम बादी,
आगे वक्त मिम बाद, मीम से मिम, बा या ज़बर बई, मिम बई, नून स्वाद निस, मिम बई निस, स्वाद लाम पेश सुल, मिम बई निस सुल, बाज़े बी, मिम बई निस सुल बी, आगे वक्त मिम बई निस सुल्ब, लाम ज़बर ला, नून सीन ज़बर नस, लनस, फा ज़बर फा, लनसफ़ा, आइन मीम दो ज़बर अम, लनसफ़अम, आगे बा है इसलिए यहाँ पर मीम लिखा हुआ है, लनसफ़अम, यहाँ पर अगर वक्फ करेंगे तो फिर ये मीम नहीं पढ़ाया जाएगा, लनसफ़अम, आगे वक्फ लनसफ़अ। बाकी हम अगले सफ़ा पर देखते हैं। यहाँ से अगला सफ़ा है, बानून बिन, यहाँ हमने पीछे पढ़ा था लनसफ़अम, तो वो अगर इसके साथ मिलाकर पढ़ें तो फिर भी पढ़ सकते हैं, वैसे वहाँ हमने वक्फ कर लिया था इसलिए हम यहाँ से शुरू करेंगे। बानून बिन, नून अलिफ ज़बर ना, बिन ना, स्वाद सी, बिन नासी, या ज़बर या, बिन नासिया, ताज़ेती, बिन नासियाती, आगे वक्फ बिन नासिया, बाज़ेर बी, ज़ार मीम ज़बर ज़म, बिज़म, बाज़ेर बी, बिज़म्बी, हा मीम ज़ेर हिम, बिज़म्बिहिम, आगे वक्फ बिज़म्बिहिम। यहाँ अगर हम देखें तो मीम साकिन से आगे मीम आ गया है, यहाँ कायदा लगता है, लेकिन यहाँ हम वो कायदा नहीं लिखेंगे क्योंकि वो फिर इदगाम के कवायद हैं, उनको और आगे तफसील से पढ़ना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ, यानी कि साकिन से आगे वही हर्फ दोबारा आ जाए तो फिर इनका इदगाम हो जाता है और यहाँ पर हम मीम को मीम से मिला देंगे और यहाँ पर तशदीद आ जाएगी, तो हा मीम से हिम, फिर ये वाला मीम नहीं पढ़ा जाएगा, ये वाला मीम पढ़ा जाएगा, तो हम कहेंगे हा मीम से हिम, ये वाला मीम, ये नहीं पढ़ेंगे। तो बिज़म बिहिम, वो तशदीद आने की वजह से यहाँ पर गुन्ना भी कर लेंगे और हम पढ़ेंगे बिज़म बिहिम, और यहाँ क्योंकि हम नहीं मिला रहे हैं इसलिए यहाँ वक्फ कर सकते हैं, बिज़म बिहिम, आगे वक्फ बिज़म बिहिम, मीम पेश मु, ताहा ज़बर ताह, मुताह, हा ज़बर हा, मुताहा, रा ज़बर रा, मुताहरा, ता मीम दो ज़ेर तिम, मुताहरातिम, बाज़ेर बी, मुताहरातिम बी, हमज़ा या ज़बर आई, दाल या ज़ेर दी, मुताहरातिम बी अईदी, आगे वक्फ मुताहरातिम बी अईदी। यहाँ हरूफ मद्दा है इसलिए वक्फ करते वक्त कोई तब्दीली नहीं आएगी। सीन ज़बर सा, फा ज़बर फा, साफा, रा ज़बर रा, साफारा, ता दो ज़ेर तीन, साफारातिन, इख्फा की मिसाल है, काफ ज़ेर की, रा अलिफ ज़बर रा, किरा, मीम मीम ज़ेर मिम, किरामिम, सफरातिन किरामिम, बा ज़बर बा, रा ज़बर रा, किरामिम बारा, रा ज़बर रा, किरामिम बारारा, ता दो ज़ेर तीन, सफरातिन किरामिम बारारातिन, आगे वक्फ सफरातिन किरामिम बारारा, हा मीम पेश हम, फा या ज़ेर फी, हम फी, हा अलिफ ज़बर हा, हम फीहा, आगे वक्फ हम फीहा, लाम ज़बर ला, काफ मीम पेश कुम, लकुम, दाल या ज़ेर दी, लकुम दी, नून पेश नु, लकुम दीनु, काफ मीम पेश कुम, लकुम दीनुकुम, वाव ज़बर वा, लाम ज़ेर ली, लकुम दीनुकुम वाली, या ज़बर या, लकुम दीनुकुम वालिया, दाल या ज़ेर दी, लकुम दीनुकुम वालिया दी, नून ज़ेर नी, लकुम दीनुकुम वालिया दीनी, आगे वक्फ लकुम दीनुकुम वालिया दीन, हमज़ा नून ज़ेर इन, नून ज़बर ना, इन्ना, रा बा ज़बर रब, इन्ना रब, बा ज़बर बा, इन्ना रब्बा, हा मीम पेश हम, इन्ना रब्बहुम, मीम साकिन से आगे बा है, तो यहाँ पर एक कायदा है,
हम पढ़ेंगे मीम साकिन से आगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मीम साकिन से आगे मीम है और यहाँ मीम साकिन से आगे बा है। तो मीम साकिन से हम इस तरह लिख सकते हैं, मीम साकिन से आगे मीम या बा, यानी मीम साकिन से आगे मीम या बा आ जाए तो वहाँ गुन्ना करते हैं। ये आसान कायदा है, हम एक बच्चे को इस तरह बता सकते हैं। मीम साकिन से आगे मीम हो या फिर बा हो, दोनों सूरतों में वहां पर एक गुन्ना होता है। हा मीम पेश हुम इन्ना रब्बहुम, बाज़ेबी हा मीम ज़िरहिम इन्ना रब्बहुम बिहिम, आगे वक्त इन्ना रब्बहुम बिहिम, तार राज़बर मीम याज़िर मी तरमी, हा मीम ज़िरहिम तरमीहिम, आगे मीम साकिन से आगे फिर बा है तो हम यहाँ गुन्ना करेंगे तरमीहिम बाज़ेबी हाज़िही, तरमीहिम बिही, जीम अलिफ ज़बर जा, तरमीहिम बिहिजा, रा ज़बर रा, तरमीहिम बिहिजारा, ता लाम दो ज़ेर तिल, यहाँ इदगाम कामिल की फिर मिसाल है, हम मिला भी सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर वक्फ करेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे तरमीहिम बिहिजारतिल, आगे वक्फ तरमीहिम बिहिजारा, लाम ज़बर ला, हा मीम पेश हुम लहुम, यहाँ पर मीम साकिन से आगे फिर मीम है तो इसलिए यहाँ हम गुन्ना करेंगे लहुम, मीम अलिफ ज़बर मा, यहाँ मीम याद रखिए ये वाला मीम नहीं पढ़ा जा रहा, ये वाला मीम पढ़ा जा रहा है। लहुम मीम अलिफ ज़बर मा, लहुम मा या ज़बर या, लहुम माया, शीन अलिफ मा ज़बर शा, लहुम मायशा, हमज़ा वापिश तू, नून ज़बर ना, लहुम मायशाऊना, आगे वक्फ लहुम मायशाऊन, मीम मीम ज़ेर मीम, मीम ज़बर मा, मीम्मा, आगे वक्फ मीम, यहाँ पर हम वक्फ करेंगे तब भी गुन्ना करेंगे मीम्मा, आगे वक्फ मीम। और याद रखिए यहाँ पर अलिफ लाम फिर आ गया है और इस मीम को हम लाम से मिला भी सकते हैं। अगर हम मिलाएंगे मीम लाम ज़बर मल, मिम्मल, लाम खड़ा ज़बर ला, मिम्मल्ला, लाम पढ़ने में बारीक होता है लेकिन अल्लाह का लाम मोटा होता है क्योंकि उससे पहले ज़बर है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने वक्फ कर लिया था, हम इसको यहीं से शुरू कर सकते हैं। हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम खड़ा ज़बर ला, अल्लाह, यहाँ खड़ा ज़बर नज़र नहीं आ रहा लेकिन खड़ा ज़बर होता है। अल्लाह, हा मीम पेश हुम, अल्लाहुम, मीम ज़बर मा, अल्लाहुम्मा, आगे वक्फ अल्लाहुम, ता मीम ज़बर तम, मीम ता ज़बर मत, तम्मत, बा लाम ज़ेर बिल, तम्मत बिल, खा या ज़बर खाई, तम्मत बिल खाई, राज़िरी, तम्मत बिल खैरी। ये वाले जो कलिमात हैं ये कायदे का हिस्सा नहीं है, वैसे ये लिखा गया है तम्मत बिल खैर, मतलब ये कायदा खैर के साथ मुकम्मल हो गया। तो वैसे मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। ये था आखिरी सबक हमने कायदे का अभी पढ़ा है। इस कायदे के बारे में कोई भी सवाल आपके जहन में हो या फिर वैसे ही तजवीद से मुताल्लिक़ कोई बात हो या इस्लामी चीज़ें आपने पूछनी हो, मसाइल पूछने हो, उसके लिए भी राब्ता किया जा सकता है। इस कायदे का PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो जितने भी असबाब मैंने आपको पढ़ाए हैं उन तमाम असबाब की डिस्क्रिप्शन के अंदर इस कायदे का लिंक दे दिया गया है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको लिंक ना मिल रहा हो या फिर इसको डाउनलोड करने में कोई इशू आ रहा हो, उसके बारे में भी आप राब्ता कर सकते हैं। अगर आप कुरान मजीद या तजवीद या अरबी ग्रामर
لینگویج وغیرہ پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں۔ آگے ہم یہ والے قواعد پڑھیں گے، اور اس سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔